નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. દાહોદના મહિલા જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ વીઆઈપી કલ્ચરનો ત્યાગ કરીને નવો ચીલો ચિતર્યો, જેમણે પોતાના પુત્રને સરકારી આંગણવાડીમાં મૂક્યો. દાહોદ જિલ્લામાં પોતાની સંવેદના અને પ્રજાભિમુખ વહીવટથી જિલ્લા વિકાસને નવી ગતિ અને દિશા આપવા માટે હર હંમેશ તત્પર રહેતા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી નેહા કુમારીએ વીઆઈપી કલ્ચરનો ત્યાગ કરી પોતાના દીકરાને સરકારી આંગણવાડીમાં પ્રવેશ અપાવીને સરકારી બાબુઓમાં નવો ચીલો ચિતર્યો છે. દાહોદને અડીને આવેલી છાપરી ગામે કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રમાં તેઓ એક અધિકારી તરીકે નહીં પરંતુ એક સામાન્ય વાલી તરીકે પોતાના બાળકને આંગણવાડીમાં મૂકવા ગયા. તેમની આ જ એક લાગણી એમને અલગ દરજાના અધિકારી તરીકે તારવે છે. દાહોદ જિલ્લાના સદનસીબે ઘણા ખરા મુઠ્ઠી ઊંચેરા અધિકારીઓ સાંપડ્યા છે, જેમાં આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી નેહા કુમારીનું નામ ઉમેરાયું છે. આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા જિલ્લા પ્રત્યે તેમને લાગણી અને આદિવાસી લોકો પ્રત્યે તેમનું પોતાનુંપણું અને લગાવ પણ એટલો જ જાણીતો છે, જેના થકી તેઓએ જિલ્લાના વિકાસના કામોને નવી રાહ અને નવી દિશા આપી છે. સાથે સાથે તેઓએ પોતાના દીકરાને છાપરી ગામની સરકારી આંગણવાડી કેન્દ્રમાં પ્રવેશ અપાવીને કર્મભૂમિનું જાણે ઋણ અદા કરવાની નેમ લીધી હોય તેમ નરી આંખે જોવાઈ આવે છે. એક ક્લાસ 1 અધિકારી તરીકે જો પોતાના બાળકને સરકારી આંગણવાડીમાં તેઓ ભણાવે તો એના શિક્ષણનું સ્ટાન્ડર્ડ ચોક્કસ વધે, તેમજ જિલ્લાની સરકારી સંસ્થાઓ પર તેમનો વિશ્વાસ દર્શાવે છે. છાપરી ખાતે કાર્યરત આંગણવાડી કેન્દ્રમાં 55 બાળકો રજીસ્ટર્ડ થયા. અહીંયા અમારી આંગણવાડીમાં લગભગ 55 થી 60 બાળકો રજીસ્ટર થયેલા છે. તેમાં 35 થી 40 બાળકો મારે આવે છે નિયમિતપણે, અને અમે એ બાળકોને એક ટાઈમ સવારનો ગરમ નાસ્તો આપીએ છીએ અને બપોરનું અમે ભોજન આપીએ છીએ. 2 વખતનો નાસ્તો આપીએ છીએ અને સોમ અને ગુરુ અમારે ફળનો વારો હોય છે. અને વત્તા અમારે સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓનું હમણાં ચાલે છે પોષણ સુધા યોજના હેઠળ. એ માતાઓને પણ અમે નાસ્તો બનાવીને અહીંયા આપીએ છીએ. અને મારી આંગણવાડી પર અહીંયા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મેડમ છે, એમનું બાળક પણ અહીંયા મૂક્યું છે. તો એ બાળકની પણ મેં મારામાં નોંધ કરી અને એ બાળકને અહીંયા મેડમ રોજે મોકલે છે. અને એમને બી અમે બાળકોને શાળામાં જે અહીંયા આંગણવાડીમાં પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ આપીએ છીએ એ હેઠળ એમને અમારે જે આપવાનું હોય પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ એ રીતે અમે એ બાળકને પણ સાથે રાખીને આપીએ છીએ. इसमें भेजना शुरू किया. पहले वो अकेला घर पर रहता था तो थोड़ी जिद करता था, खाने में बहुत आनाकानी करता था, पर फिर परेशान थी मैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि अगर वो बाकी बच्चों के साथ बैठेगा, उनके साथ खेलेगा, सीखेगा तो शायद ये अच्छा रहेगा. और इसको मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम अपने ही आंगनवाड़ी में उनको भेजें, ताकि ये इसके साथ ही अगर आंगनवाड़ी की जो सुविधा है उसका भी हम लाभ ले पाएँ, और साथ ही साथ अगर उस आंगनवाड़ी में कोई छोटी मोटी कमी हो तो हम एज अ सिस्टम उसके चेंज या उसका बदलाव भी साथ में ला पाएँ. इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि छापरी जो है वो हमारे ऑफिस के बाजू में ही गांव है और वहाँ की आंगनवाड़ी है, और वहाँ की जो बहन है वो भी बहुत ही एक्टिव है. तो उन्होंने भी बच्चों के लिए अलग अलग तरीक़ों से जो मेन्यू के प्रमाणे जो भी उनको डे टू डे में खाना बनाना होता है और उसको किस तरह से वो काफ़ी साफ़ सफाई के साथ सभी रूल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने किया भी है. साथ ही साथ मैंने देखा कि वहाँ के आस पड़ोस के जो बच्चे हैं तो थोड़े जो क्षेत्र है हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी कुपोषण की भी थोड़ी समस्या है. तो आंगनवाड़ी नियमित खुले, साथ ही साथ वहाँ जो मेन्यू के हिसाब से खाना बनना है वो बने, साथ ही साथ अपने पोषण सुधा की योजना भी वहाँ पर चलती है. तो ये एक गांव की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के लिए एक हब है, जो बच्चे सुबह वहाँ पर आएँ और नियमित रूप से खेलें कूदें, अपनी प्रवृत्तियाँ अलग अलग जो सिखाते हैं वहाँ पर वो करें. ऐसे ही एक मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी उसका भाग बने और साथ में बच्चों के साथ वो शेयरिंग और ये सारी चीज़ों को सीखे, और उसकी जो खाने की आदतें वो भी सुधरे. तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमने उसको छापरी की आंगनवाड़ी में भेजना शुरू किया. और इससे हमें ये भी काफ़ी लर्निंग मिली है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स अगर करें तो बच्चों को वहाँ पर आने में और भी अच्छा एक मज़ा आए. और ख़ास करके जो अपनी बहनें हैं उनसे भी मेरी आग्रह रहेगी, जो तेड़ा घर और वर्कर बहनें हैं, कि आप
एक तो पहले नियमित रूप से आंगनवाड़ी आपकी खुले, समय सर खुले और लोगों से आपका 1 to 1 कनेक्शन बने। जो भी बच्चे हैं वो अगर उनके पेरेंट्स उनको वहाँ भेजते हैं तो एक विश्वास के साथ भेजते हैं कि बच्चा हमारा जा रहा है और अच्छा वहाँ पर कुछ सीखेगा, वहाँ पर उसका ध्यान दिया जाएगा। तो अगर हम नियमितता नहीं रखते हैं और अपने काम में अच्छे से डिसिप्लिन से नहीं रखते हैं तो फिर वहाँ लोग बच्चे अपने नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए मैं अपनी बहनों से भी हमने एक आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी मैं ये आग्रह करूँगी कि वो अपने जो आंगनवाड़ी पे एनरोल्ड बच्चे हैं उनको वहाँ पर नियमित रूप से जो मेन्यू के हिसाब से भोजन है वो दे। उनको खेलने की बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा, पर ज़्यादातर काफ़ी बार वो बंद पड़े हुए रहते थे, लेकिन उसको उनको खेलने दे, उसका यूज़ हो तो ही उसका एक्चुअल हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे और इसके द्वारा हम अपने बच्चों को काफ़ी हद तक मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बना पाएंगे। थैंक यू। मैडम, दाहोद जिला आदिवासी बेल्ट है और यहाँ के कई इलाके ऐसे जिसमें आंगनवाड़ियाँ जो ख़राब कंडीशन में हैं और एक तरह से एज ए अधिकारी आपने अपने बच्चे को यहाँ रखा है। हालांकि ट्रेंड यहाँ कोई भी सिटी में अलग ही रहता है कि जैसे कोई भी पैसे वाले घर हो या अधिकारी हो वो अपने बेटे को कोई अच्छी स्कूल में ऐसे करते, तो इसको लेकर आप दाहोद वासियों को क्या मैसेज दोगे? देखिए, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को कहाँ भेजता है वो उसकी चॉइस है, लेकिन अगर हम अपना चॉइस का बास्केट ऐसा रखें कि हमारी आंगनवाड़ी अगर मान लीजिए किसी प्राइवेट प्ले स्कूल के कंपैरिजन में उतनी ही अच्छी हो, उतनी ही उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो और बच्चे वहाँ पर आकर पेरेंट्स को सुरक्षित फील करें और उससे उनको उतना ही टेक अवे लेकर जाए जितना कि वो प्ले स्कूल में लेके जाए, तो आई थिंक कि वो उस दिन हम लोग 100% ये कह पाएंगे कि वी आर नो वेयर लेस या हम किसी भी माध्यम में उससे पीछे नहीं है प्राइवेट से। तो यह यहाँ पर एक लर्निंग है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, हमारे सिस्टम के लिए भी, जो कि ऑलरेडी बहुत काम कर रही है। पर वो एक कहते हैं मार्केटिंग, तो इतना मार्केटिंग आज के डेट में हमारा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि ये सरकार के द्वारा दी गई फ्री सुविधा है जो कि हर एक बच्चा इसका, हर एक, ना तो कोई फीस ली जाती है ना ही इसमें। और आपको मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ पर जो रोज़ के रोज़ वो मेन्यू होता है, आज ही मैंने देखा कि आज सुखड़ी थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि जनरली जो आजकल का ट्रेंड है वो जंक फूड का है, वो पड़ीका का है, लेकिन आंगनवाड़ी पे जाकर ये हॉट कुक मील और ये हेल्दी खाना सीखना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने वैल्यू सिस्टम्स को देखें तो अभी भी हम दादी अगर माँ के बात समझे या अपनी मम्मी से पूछें तो यही बोलेंगे कि बच्चे को दलिया खिलाना चाहिए, बच्चे को आप जब नया खाना शुरू करते हैं तो राब और सिरों से ही शुरू करते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आंगनवाड़ी में ऑलरेडी हैं, बस हमें ज़रूरत है कि उनके अगर थोड़ा बहुत कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में